So first thing is we have to present ourselves in French. Okay. So A2 level text है. So ਤੁਸੀਂ familiar ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁ right ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ help ਹੋਊਗਾ TEF speaking part 1. We have discussed before that in speaking there are three sections. One is present yourself. Second one is you have to talk about the subject. So generally when we practice, so we are doing that as well. So I think that there are not more than 60 to 70 subjects, different subjects, which you can come across in the TEF exam. And so we have done all these. And we will keep on adding the list, kept adding the topics as we will do. We will keep on adding. So whenever you want to revise, just simply click here and then you can just go here and see. So this is generally what we discussed in class. And if you happen to see some red marks, this is the presentation, this is the errors that you have that I heard, and then it will perhaps help you to remind to not make or maybe correct those while you practice French. Other than that, I repeat, please start recording yourself, filming yourself while you speak in French. This will help you to, when you listen to yourself and when you listen to other speakers, French speakers, so you can see which faults I do make and how can I improve on that? How can I work more on that? And yep, let's get started for today. So today we will do a general presentation. Why you started learning French. So this is not what you expect in the exam. You would expect introduce yourself. And so it's similar to that, but you can use a lot of syntax from here, the connections. First of all, you have to introduce yourself. Bonjour, je m'appelle Tatata, Kunal. J'apprends le français depuis un an. J'aime cette langue pour plusieurs raisons, just as in IELTS exam. So you have to structure your phrase. First, okay, bonjour, je suis Kunal, je m'appelle Kunal, je viens d'Inde, je suis indien, je parle français, anglais, punjabi, hindi. J'aime cette langue pour plusieurs raisons. D'abord, le français est une belle langue. Okay. Ensuite, après cela détail. As in same as in English, right? You give an example and then details to consolidate your learning or maybe your point of view. Then is second point, ensuite. Okay, so these are connectors, logical connectors that you will use. Ensuite, je veux voyager. That's the main verb, voyager. Okay, and then example. J'aimerais visiter Paris, Tour Eiffel, goûter des croissants. Okay, si je parle français, and then you are putting your point of view, like, with details. Si je parle français, ça sera plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin. Okay, chemin is street. If I'm lost somewhere, so it's easier for me to ask which way to go if I speak French. Aussi, le français m'aide pour les études. Pour mes études, beaucoup de livres importants sont en français. C'est utile pour travailler dans les organisations internationales. Si vous parlez français en plus, donc ça vous aide, ça vous ouvre plusieurs portes. Vous pouvez travailler avec l'UN, par exemple, UN, l'UNO, on appelle ça en français, it's UN, United Nations. And any questions, Rumi? Any questions, Rumi? Okay, perfect. And so let's start with first part and then we will cross question. Okay. Discussion, right? Then you ask each other, right? Pourquoi tu apprends en français? And then you give your reason. Then with whatever vocabulary you have already and whatever you have learned from the past. And to start with, we can maybe start. We have a script in front of you. So you use the script, okay, to say whatever you want to say.
What you have to do is you have to just change certain verbs. Okay. So let's say if you don't like traveling, but you have some, let's say you like French food, French cuisine. Okay. So ensuite, j'aime cuisiner et j'aimerais visiter pour goûter la nourriture. Okay. So you can give any reason you want to. Okay. J'aime la sport. So, il y aura les Olympiques prochainement dans 2030 à Paris et j'aimerais aller la visiter. I just want to see the Olympics in Paris that will happen in 2030. So you can just give your reasons, but first of all, let's start with the script and then we will extend. So who's gonna practice first? It's Monday, guys. Show me some energy, please. It's Monday. मैं हर बारी पहला आना नहीं, it's Monday यार। मंडे ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ, ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਜ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਉੱਠੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ। ਸੋ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ pourquoi j'apprends la français, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ why I'm learning French. So Bonjour, je m'appelle Taiki et je prends le français depuis un an et j'aime cette langue pour les jours récents. सारा बोलना भैया। De बहुत le français est une belle langue. J'adore écouter des chansons françaises comme celle de Stromae ou de Indila. Les mots sont mélodieux comme chocolat et lumière. Ensuite, il y avait voyager en France et j'aimerais visiter Paris, voir la tour Eiffel et goûter des croissants. Je parle français. Ce sera plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin. Aussi, les Français m'aident pour m'étudier beaucoup de livres importants sont en français et c'est utile pour travailler dans des organisations internationales. Enfin, mes amis apprennent le français aussi. Nous pratiquons ensemble et c'est amusant. Et toi, pour qui apprendre le français? bravo, bravo, bravo. Well done. So there were some errors. First of all, you have to keep in mind that when you speak in French, you have to take certain pauses. Like, so if let's say I am saying, je veux apprendre la français depuis un an, j'aime cette langue pour tout. You have to give some pauses, right? So you have to show the listener that here is a comma. Je m'appelle Gargi, comma, stop little bit. Et j'apprends la français depuis un an. Stop, because it's a full stop. So you have to, that's called the connotation of the sound. You have to do it like that.
sure to show that you are speaking the language and not that you're reading a book. This gives a more impression, right? And coming to the phonetics, phonetics, phonetics sound. But before that, I just want to know if any thing is not clear, any word is not clear. It's very simple vocabulary, something that you think that you should know before I come to the pronunciation part. Melodio is something pleasant. Okay, it's here. J'apprends le français depuis un, j'aime cette langue. Nanana. So these are the singers, Stromae, Indila, the well-known singers, French singers. And chocolat, lumière means light, chocolat means chocolate, and goûter means to taste. Okay, voir means to see. Goûter is a verb, it means to taste. The croissant, you know, right? Croissant. Ça sera. So this one is a future of verb être. Okay, so this we have not done that. So what we will do is we will just change the verb. So c'est plus facile. Être, ok. C'est plus facile de commander. Si je parle français, c'est plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin. Chemin means street. Okay, chemin means street. And so this is clear. Aide means to help. Beaucoup de livres importants sont. So I think that you should know all of these. But if not, please let me know. I will help you with that. First, vocabulary. All right. All good? Perfect. Perfect. So coming to the pronunciation then. So j'apprends, Gargi, j'apprends, j'apprends. It's like it's pronounced as j'apprends. So j'apprends. Okay. J'apprends. 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 Yeah, très bien. Cette langue pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. OK. D'abord, la français est une belle langue. J'adore écouter des chansons françaises comme celle des Stromae et d'Indila. Les mots sont mélodieux. So here EUX, it becomes O. जिदा आप पंजाबी कहना होवे ऐदा लिख दे, डंडा पा के ना हिंदी में इसको ऐसे लिख दिया O. So that simply EUX. इसकी pronunciation simple ये है, simply O. Mélodieux, comme chocolat ou lumière. So यहाँ पे visiter आपने पूरा बोलना है. J'aimerais visiter. Visiter. और ये है जो पार्ले नहीं है, ये वर्ब है कॉन्जुगेटेड य के साथ. तो आपको पता होगा हम य के साथ जब बोलते हैं हम सिर्फ एल तक ही बोलते हैं, पार्ल फ्रांस से. ओके, सेम थिंग ये c'est plus facile, एल तक बोलना आपने, ठीक है. और aussi la français made. ओके, so हम आगे करेंगे. एम अपोस्ट्रोफ कहाँ से आया. ओके, बट फिलहाल के लिए ये जो फ्रांसे है ना, ये troisième पर्सन टू सिंगुलियर है. वर्ब है एदे, ठीक है. और वर्ब एदे के साथ ऐसे बन गया एदे. If we conjugate the verb aider, you know well, right? So j'aide, tu aides, il aide. अब il aide है तो ऐसा आएगा la français made. एम अपोस्ट्रोफ कहाँ से आया वो हम बाद में करें. अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ हाईलाइट. pour mes études. और यहाँ पे ये वही सेम चीज है, फैमिली वाला
travailler है ना, इसके आगे और पीछे है वॉवल, सो जो एल एल है ना ये बन जाएगी वाई, प्रोनाउंसिएशन इसकी। सो travailler, एल एल नहीं बोलना, travailler। ओके, ये सेम गलती, ये पता क्या है, ये वर्ब है अपखांद, ये अपखांद वर्ब ना हमने किया हुआ अपखांद, इसकी कंजूगेशन क्या होती है, j'apprends, ओके, tu apprends, il apprend, nous apprenons। हेल्प करो मेरी प्लीज, क्या आएगा आगे? ये थर्ड कैटेगरी वर्ब है। Apprendre, हाँ, Vous apprenez, vous vous apprenez, vous apprenez, यस, और इसका इल के साथ क्या आएगा, apprend, il apprend, ओके। तो ये जब ये है ना जो mes amis, तो ये है प्लूरल, troisième पर्सन du pluriel, ओके, mes amis यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये आपका बन जाएगा ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला जो नीचे लिखा ना troisième पर्सन du pluriel। तो अब हम हमने ये बोलना है, तो हम सिर्फ यहाँ तक बोलेंगे, अपखन तक, राइट, ईएनटी हम बोलते नहीं थे, पता ना आपको। तो आपने बोला अभी mes amis apprennent la français aussi, बाकी रेस्ट वाज गुड। So I'm just trying to, Gargi, if you can note it down your errors, maybe take a screenshot or something. I mean, let me see if I can send a photo, because erase this. I took one. Thank you. Okay, perfect. So I'm gonna erase this. Okay, ji, Rumi, you can start. Bonjour, je m'appelle Léa, je m'appelle Rumi. Et je... Bonjour, je m'appelle Rumi. Je prends le français depuis moi. J'aime cette langue pour les jours raisons. D'abord, le français est une belle langue. J'adore écouter des chansons. Français, c'est comme scellé, des storms ou anglais. Les mots sont mélodies comme chocolat ou le mieux. Ensuite, je vous voyage en France. J'aime jamais visiter Paris, voir la tour Eiffel, goûter des croissants et de parler français. C'est plus facile de commander au restaurant ou te demande mon Chine. Aussi, le français m'aide pour étudier beaucoup de livres importants sont en français. Et c'est utile pour travailler dans des organisations internationales. I can't pronounce. En fi, mes amis apprennent le français aussi.
nous pratiquions ensemble et c'est amusant. Et toi, pourquoi apprendre tout le français? It was really good, Rumi. It's a very good effort, but there are some errors as usual. So first of all, it's set lang, okay? Lang. You don't speak U, E. We just speak up here L-A-N-G. So lang, okay? So, and then comes, so you have to keep a note of her liaison here. La français est un. Okay? Again, lang. And j'adore écouter des chansons françaises comme celle. So, celle, we will do ahead. So, it's what it's the plural of L. Okay. So, plus L becomes cell. And since it's plural, so we have here S because of that. So, it becomes cell. Okay. So, it just means in English these. Okay. For now, it's just these. We'll not go into details. For now, it's just these. These of Stomei et Dindila. Les mots sont mélodieux. ओके, मेलोडी, यहाँ तक पीछे ई है, डी के बाद दे के बाद ई है, मेलोडी ओ, और जो एक्स है वो बन जाएगा उसका ओ, मेलोडियो। उसके बाद यहाँ पे आपने बोला लेजो, पर यहाँ पे लेजो नहीं आएगा। ओके, voir la tour Eiffel et goûter des croissants। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? आपने बोला लेजो लगाया था, उसके दे मुझे नहीं पता लेजो था यहाँ पे, मैंने देज कर दिया था। देज कर दिया था, तो दे, तो उसके बाद उसका लेजो नहीं है क्योंकि बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट, राइट? सो दे croissant। ओके, सो ये छोटी छोटी गलतियां यार, ये नोट कर लो, आपको ना आगे या चल के बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे आप नॉर्मली बात करोगे तो आपको अभी मुझे पता टाइम लग रहा है ना, आप बोलोगे क्या यार बार बार वही, पर जब है ना विद टाइम आप ये चीज़ों को छोड़ के हम अब एडवांस जाएंगे, इंटरमीडिएट जाएंगे, तो हम इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे अपना, ठीक है? कि आपको वो तब तक चीजें ना पक्की हो जाएंगी आपके दिमाग में। सो अब आई नो इट्स, आप भूल जाते थोड़ा बहुत, तो इसलिए कहता हूँ लिख लो, आप अपने कोई नोटबुक बनाओ। अगर आप जर्नलिंग करते हो तो रात को लिखो कि भी ये मैंने नहीं बोलना। जैसे इस बार रूमी आई डिडंट हर्ड इट, सो वो चीज आपकी पक्की सही हो गई है। सो इस बार आई डिडंट हियर एनी ए, इट वाज ए एंड नॉट एथ, सो दैट इज गुड। दैट इज योर मिस्टेक दैट यू डू नॉर्मली। सो इट्स, तुम बोलते यहाँ पे एथ, सो इस बार मुझे ए सुना, सो दैट वाज गुड। कितनी बार आया अभी ए भी? सो ऐसे ऐसे करके ना कुछ कुछ चीजें मतलब हर बंदा का पर्सनल होती हैं जो, तो वो इम्प्रूव करो और नोट्स बनाओ अपने। यार मैं ये गलती नहीं करूंगा आगे से, जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट है आपको, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी उसमें लिखो। और क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, हर बंदे का अपना ही चल रहा है सिस्टम, और याद कर रहा है, खुद से भी एफर्ट कर रहा है, तो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, राइट? सो but because I listen to you specifically, so I can tell you that this is the thing that you need to work on. And उसके बाद ये यहाँ पे आया demander, ये वर्ब पूरा ही है, राइट? सो हम पूरा बोलेंगे इसका वर्ब को, demander। यहाँ पे si je parle français c'est plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin। तो यहाँ पे मुझे सुना क्लास से सिर्फ demand, राइट? पर यहाँ पे है demander। उसके बाद है aussi la français m'aide pour mes études, français m'aide pour mes études। यहाँ पे आपने छोड़ दिया मेज, तो आई डिडंट हियर मेज, ओके, सो मेज। उसके बाद था beaucoup de livres importants sont en français, c'est utile pour travailler। यहाँ पे here I heard travailler, ओके, एल नहीं, फिर y आएगा यहाँ पे, travailler। travailler।
travailler, très bien, très bien। यहाँ पे इंग्लिश होनी मुझे इंटरनेशनल्स, सो Yeah. इंटरनेशनल, international, इंटरनेशनल, international, इंटरनेशनल, international, वेरी क्लोज, in इंटरनेशनल, international, या international, इंटरनेशनल, international. या काइंड ऑफ क्लोज बट स्टिल नॉट देयर येट। आंफा, सो आंफा होता है सबके बाद में। तो आप देख रहे हो ये स्टार्टर्स हमने यूज किया है, दाबा, Ansu, Aussie. क्या हुआ? हाँ देखिए, अबोध, अंसू, bonjour, Aussie, enfant. या तो ये आपको याद करने हैं। ये आपको कोई भी बात करते हो ना, जैसे आप नॉर्मली, तो ये आपको लगाने हैं उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लॉजिकल सेंस बनेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़ेगी आपकी, और आप क्लियर हो गए अपने आइडियाज में। सबसे पहले क्या, तबाख सबसे पहले, उसके बाद औसी होता है, ये भी ओके। आंफा होता है सबसे बाद में, इन द एंड, आंफा, 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 निजामी खाना फ्रांस। सो ये स्ट्रक्चर है। सो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर and then you have your ideas, you can embed your ideas into this structure, then you can give the example. So basically होता कुछ नहीं है यार। अगर हम टफ की राइटिंग की बात करें, ठीक है, अगर स्पीकिंग की बात करें, तो वेरी सिंपल। तो जैसे आइल्स करते हो आप, राइट, पता ना आपको, तो उसमें एक आप लिखते हो पहले, छोटे जैसे की बात करते हैं, राइट। तो आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, ठीक है, तो यू हैव टू गिव योर स्टैंड, यू विल बी फॉर दिस टॉपिक और अगेंस्ट दिस टॉपिक, ठीक है। तो बताओगे वो पहले, जैसे डू यू थिंक, आर यू अगेंस्ट child abuse, that children should not work in hospitals or hotels, or when they are less than 14 years of age. So then जो आपकी इंट्रो होती है, उसमें क्या लिखोगे आप, जो आप जिसकी बात करोगे आप, राइट। इंट्रो में वही आ गया ना, बी आई एम अगेंस्ट दिस फॉर दिस रीजंस, राइट। आपका स्टैंड क्लियर हो जाता है पहले पैराग्राफ में, राइट। तो बता देते कि भी मैं इसके खिलाफ हूँ, क्यों खिलाफ हूँ, ये और ये और ये। और जो आपका पहला पॉइंट होगा ना, तो लिखना अपने दबाव सबसे पहले, फिर आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर आइए आपकी डिटेल यहाँ पे, ठीक है। डिटेल एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स भी जा सकते हो आप उसमें, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया, फिर पहला इंट्रो आ गई, उसके बाद फर्स्ट रीजन, उसके पहले जैसे कोई हेल्प जो वर्ब्स होते हैं ना, जैसे ये वाले द बॉग, ओके, द बॉग, फर्स्ट रीजन आ गया। उसके बाद इसकी आपकी एग्जांपल आ गई एक, रेजों, खमीर, खमीर रेजों, एग्जांपल, डिटेल। और ये सेम स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है, ठीक है। बदलेगा क्या, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना पहले वाले, ये अब अनस्वित, इसका सिर्फ ये बदलना, और इससे आपकी राइटिंग में बड़ी हेल्प होगी। आंसर हो गया, और भी होता है ओसी। फिर यहाँ पे सेकंड रीजन आ गया आपका, दूसरे रीजन एग्जाम्पल देता है, यहाँ पे सिर्फ सेम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, फॉजियम रीजन एग्जाम्पल देता है, ये हो गया। उसके बाद पूर रिज्यूमे, या फिर आंफा, या कुछ भी है ना, पूर तरमीने,
मतलब काफी होते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। और सभी आपको ये मतलब pour résumer enfin pour terminer, उसके बाद आपको जो पहले आपको जो ये जो आपने पहले बात करी ना 3 पॉइंट्स में, उसको रीस्टेट करना, राइट, रीस्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल सिंपल जो बात करी है पहले आपने, कुछ नया ऐड नहीं करना, दैट्स इट। ऐसे आप टफ की राइटिंग करोगे, ठीक है, टफ की राइटिंग भी होगी और ये आपकी टफ की स्पीकिंग भी होगी, दोनों कवर होगी इसमें, ठीक है। सो हमें वो ऐसे वर्ड्स पहले याद, मतलब उनका यूज इस तरीके से ही करना है। ये आपको देखो, अगर तो चलोगे विद स्ट्रक्चर, तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है टेस्ट टेस्ट क्लियर करना, बाकी लर्निंग देखो लैंग्वेज की फॉर लाइफ है, राइट। फॉर इंस्टेंस हमें उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, हम उसके स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि हाउ कैन वी डू दैट, राइट। तो मुझे लगता है, आई थिंक दैट आपका राइटिंग इससे अच्छा हो जाएगा, राइटिंग और स्पीकिंग, इसके 2 पार्ट अच्छे कवर अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, इट्स नॉर्मल। बाकी हम वो तो बिल्ड कर ही रहे हैं टाइम, राइट, वो तो हम करते ही रहेंगे, बट साथ में ये स्ट्रक्चर फॉलो करो आप, और इसको प्रैक्टिस को लेके चलो, क्योंकि अभी बिगिनर हो ना आप, तो स्ट्रक्चर को लेके चलो, इससे उसके बाद तुम खेल लेना, जब हम नए करेंगे चीजें या तो उसके साथ यू प्ले विद दिस, बट ये बेस यही रहेगा, बेस यही रहेगा आपका, राइटिंग पार्ट में भी और स्पीकिंग में भी आपने ऐसे ही बात करनी। इससे क्या होगा, आपको 3-4 बातें भी बता दी अपनी भी, हमें हम ये कारण है, और आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा था, और आपने जो कनेक्टर्स भी यूज करे हैं, आपने पॉज भी दिया, और आपने जो बात करी उसको सारा रिज्यूम भी कर दिया, राइट। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, बाकी जब हम आगे जाएंगे सब्जेक्टिव, आप यू कैन ऐड सब्जेक्टिव इनटू इट, you can add many more things, you can play with that a lot, but basic, तो ठीक है, फिर आपके ये आ गया, और ये खत्म हो गया आपका ये पहला। तो जस्ट एक एग्जांपल था, तो ऐसे ही मतलब मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट मैंने रखी है, तो सो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये प्रैक्टिस के लिए ऑरल प्रोडक्शन ऑरल बोलते हैं उसको फ्रेंच में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकिंग। तो ये हम आहिस्ते आहिस्ते इसको टच करेंगे, ऐसे ही होगा। अगर नई क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में आपस में, तो वी कैन डू दैट एज वेल, बताओ कैसे करना। ये होगी हमारी प्रेजेंटेशन। वो वीरे वहां पे जाना, वो नीचे जहाँ पे आपने वो वर्ड्स लिखे हैं उसकी पिक्चर या इंट्रो। ओके, बाकी मैं आपको ये भेज रहा हूँ पीडीएफ, आज ही भेज दूंगा, आपको पता ही है। नहीं मैं So, वो ऐसे खुद ऐसे ही निबल करने के लिए। दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सो अब उसके बाद पता क्या है, अगर आपको अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन के, देखो वो भी रीडिंग भी एक पार्ट है इसका, राइट। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे इसमें क्या लिया कौन है, ठीक है। तो ये यार लिया एक étudiante de français, étudiante qui apprend le français, सो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो quelle chanson française aime-t-elle, ये लिखे हुए 2, राइट। les chansons françaises de Stromae et Dindila, où va-t-elle voyager, इसका क्या आएगा बताओ, où means where, va-t-elle voyager, where she wants to travel, तो क्या आएगा, फ्रांस। फ्रांस, très bien, ये लिखा हुआ। और अच्छा, वो ऐसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे। हाँ हाँ, ये वो मतलब आपकी टेस्टिंग के लिए कि आपको समझ आती है फ्रेंच। ये रट के तो नहीं आया। हाँ, रट के तो नहीं आया, तो वो पता लग जाता है उनको, तो दे विल अडेप्ट टू योर लेवल, और आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करेंगे,
ऐसे ऐसे आप जैसे ना। तो इसलिए मैंने मतलब आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टच कर रहा हूँ, क्योंकि 78 ही हैं। तो इससे क्या होगा, इसके आपको हर एक जो मर्जी टॉपिक आ जाए, आपके पास उसकी वोकेबलरी होगी। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, जो रिवाइज कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, तो जहां से मर्जी बंदा पूछ ले। देखो बेस आपको आता होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ब्स कैसे कंजुगेट करते हैं, वो सेम रहेंगे। ग्रामर क्या होती है थोड़ी बहुत, राइट। उसके बाद आता है वोकेबलरी। तो हर एक जैसे टॉपिक हम कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट ऑर्डर कर रहे हैं, उसके कुछ नए आपको शब्द है ना, जैसे वोकेबलरी मेजों की और अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, फर्नीचर की अलग होती है। तो ऐसे करके ना आपको वोकेबलरी डेवलप होगी उससे, अलग अलग टॉपिक से। तो वो वोकेबलरी आप हर जगह यूज कर सकते हो। लिखने के लिए भी कर सकते हो, जैसे रीडिंग कर रहे हो तभी कर सकते हो। तो एक मैं ना, और एक पॉडकास्ट है अपना, इंडियन चैनल है, मैं कल देख रहा था, मुझे रैंडमली मेरे आगे आ गया। तो वो आप सुनो, मुझे अच्छा लगा। इसका पॉडकास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक तो देता हूँ आपको मैं। खुद से भी ना यार आप मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करो। तो ऐसे ही रैंडमली है, जैसे आप बिगिनर हो भी, राइट। तो आप देखो, तो आप जाओ और कोई सा भी पॉडकास्ट आप चूज कर लो, तो उसको स्टार्ट करो साथ में। उससे आपके मतलब रीडिंग, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स काफी improve शुरू हो जाएंगी। मेरे पास कल कल था, कोई इंडियन चैनल था, कोई नया बंदा है ना, उसको रेंडमली मैंने देख लिया, शायद मेरी हिस्ट्री में होगा, अब नहीं मुझे मिला। तो वो एआई के जो एआई बोल रहा है, और दो बंदे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एआई। तो वो इंटरमीडिएट लेवल का है पॉडकास्ट। उसमें 7-8 एपिसोड है, और बंदा हर दिन एक नया एपिसोड डाल रहा है। उसने सिर्फ छः, अभी 6 या 8 डाले अब तक, और आई थिंक इट्स मोर देन 85,000 व्यूज, फॉलोअर्स पता नहीं व्यूअर्स हो चुके हैं उसके ऑलरेडी, जस्ट विद इन 2-3 वीक्स। तो मुझे वो लुक्रेटिव लगा कंसेप्ट काफी, बट वो अच्छा भी है। तो आप बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस में जाना है अभी, आप रहना सिर्फ बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट, वही सुनना आप। और सिर्फ आपकी कानों को ट्रेनिंग के लिए। और जैसे बताया ना मैंने आपको एक वीडियो में इंस्टाग्राम पे, तो आप अगर नहीं समझा रहा, तो आप सब टाइटल्स ऑन कर लेना उसके। पर पहली बात तो ये, आपको लेवल रखना अपना बिगिनर, ज्यादा से ज्यादा B1, इससे ज्यादा नहीं जाना। आपने जाओगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो यही रखना, सिंपल वोकैबुलरी होगी, और आप समझना स्टार्ट करोगे उसका। मैं भी ट्राई करूंगा लिस्ट बनाने के लिए। अगर खुद से आप भी कोई आपको मिलता है कुछ, तो लिस्ट बनानी स्टार्ट करो। और वी कैन शेयर बिटवीन अवर सेल्स, राइट। ये कौन कौन से पॉडकास्ट हम अभी सुनने स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है। तो वो आप अपनी इस रूटीन में उसको शामिल करो, जब भी आपको टाइम होता है। तो आधा घंटा, स्टार्ट स्मॉल, 25 मिनट्स, जितना भी टाइम है आपके पास, तो वो आप डेली कंसिस्टेंटली सुनो उसको लेके। तो उसके बाद अपने आप आपका लेवल इंप्रूव होता जाएगा। तो ये देन यू कैन स्विच। हाँ, तो अच्छा, इसमें स्विच कर सकते हो क्या से? लाइक लेवल? हाँ देखो, पहले तो आप चलो बिगिनर से, बिगिनर देवता से चलो। अभी अगर आपको एक मिनट रुको यार, मैं बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट कल की मैं शायद बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंच बंदा है, फ्रेंच चैनल है, उससे मैंने इसको ईमेल करी है। लेट्स सी, उसका मुझे जवाब तो तक नहीं आया। तो देखते हैं, आई शो पी उसका चैनल दिखाता हूँ आपको मैं।
सो ये बंदा क्या था, एक मिनट यार, फ्रेंच विद पनाश। ये बंदा है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब इसका यार, इसका सब कुछ ही है। और इसका ना जब भी जाके, इसका जाके आपके पॉडकास्ट में इसने करा तो नहीं, इसने बनाई नहीं प्लेलिस्ट बिगिनर और नहीं, ये सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए ही है। तो भी मैं सजेस्ट करूंगा, आप लिख लो, आप नहीं लिखना तो आपको, इट्स वेरी गुड। बट अभी आप इसको टच मत करना, क्योंकि यार ये थोड़ा ना आपके आपके लिए अभी अभी नहीं बनाई। बट अभी 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसको जा सकते हो इस पे। आप वही लिख लो, यूट्यूब का फ्रेंच विद अनास। इसका बिगिनर का मुझे दिखा नहीं, तो जो इंडियन था ना वो, उसका था बिगिनर का सिस्टम। मुझे वो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, या फिर क्या, ज्यादा नहीं टाइम है उसको, 2 हफ्ते हुए हैं। तो आई विल सेंड यू दैट लिंक, ओके? अभी मैं ट्राई करूंगा व्हेन वी है ना, व्हेन वी डिस्कनेक्ट, एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड हिज चैनल एंड देन सेंड यू दैट लिंक। और वो बंदा डेली एक एक पोस्ट कर रहा है पॉडकास्ट, उसका इंटरमीडिएट लेवल का है। तो वो आप उसको स्टार्ट करो, इसको बाद, इसके हम बाद में हैं। ये नहीं, अभी अभी नहीं। बट इट्स गुड। और चलो, बैक टू वर्क। ये हमारा हो गया, राइट? हम चलते हैं अभी तो आज हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, प्रीफिक्स होते हैं ना, प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स से हम, मतलब हमें पता होगा भी सेंटेंसेस को हम कैसे, मतलब चेंज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं कहूँ कॉफी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जे अपने बालों को सही ढंग में करना, राइट ढंग में संवारना। मैथ लेशे वो अनौध। अगर मैं बात करूं दे कॉफी, तो बिखरे, बिखरने, राइट, बिखेरने, दी फेर ला कॉफर। सो इससे पता क्या होगा आपको, इससे आपको, अगर इसको मतलब पता भी ना, कुछ अगर मान लो कि कोई वर्ड आ गया आपके पास नया, तो आपको पता नहीं है कि इसका यार मतलब क्या होगा, लेकिन जो आगे इसके आगे हो ना दे लगा होगा, ठीक है, तो आपको लगा कुछ नेगेटिव है यार, ये कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ कुछ गलत है, ये कुछ सही नहीं है। तो आप उसे कुछ, आपको गैस थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है ये। तो ये इसका मतलब है। और इसमें रूल क्या है, जब तो हुआ एक, जब when something is starting with a vowel, any word, right, so you have to add the s। अगर वो स्टार्ट हो रहा है एश म्यूए के साथ, जिसे हम एच नहीं प्रोनाउंस करते, तो फिर भी एस आएगा, लेकिन नॉर्मली इट्स द एक्सेंट। तो ये हमारा है, एग्जाम्पल है कॉफी, दी कॉफी। कॉफी होता है मैथ खदेशे वो अनोग, ओके। एल कॉफ सासख pour la fête, निजाम सेंटेंस है इसका। दी फैर, दी कॉफी होता है दी फैर la coiffeur, l'arrangement des cheveux de quelqu'un, les vents à décoiffer ses cheveux। तो मतलब ये जो विंड, विंड आई, विंड ने उसके बाल सारे बखेर दिए, खराब कर दिए, हेयर स्टाइल। सेम नेक्स्ट है फैर, सिंपली हमने इसके आगे डी लगा दिया। एक सेकंड वीरे, वो वॉबल वाला फिर से समझाया मेरे निकल गया। अच्छा कोई गल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, no problem when the name is starting with a consonant, example coffee, so here C is a consonant, right? so ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ, no problem। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਨਾਮੀ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋ ਪਾਤਾ ਹਨਾ, ਮੋਨੋਟੈਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਮੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਚ ਹਨਾ, ਐਚ ਤੇ ਮੂਵ। ਸੋ ਸੇਮ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਮਿਊ ਹੈ, ਜਦ ਐਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦ, ਸਿੰਪਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਸ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। फॉर एग्जांपल कॉफर हो गया स्टाइल, दे कॉफर हो गया डिके, ਦੇ ਕੁਆਫੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਿਖੇਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਫੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਨਾ, स्टाइल और हाँ सवारना, और दे कुआफे हो गया मतलब बखेरना। अच्छा, ठीक है। और फैर करना, लाइक करना कुछ, फैर दे फैर हो गया वैसे ही, बितखोर, ओके, अनूले। एग्जाम्पल जिसने दिया, इल पे से देवुआ, वो अपना काम कर रहा है, एल दे पे सो नो, नो होती है टाई, आई थिंक। नो या सो राइट, सो हम कर रहे थे ये, और दूसरा है आबिये और déshabillé, राइट। और आबिये होता है टू ड्रेस अप, mettre des vêtements, ओके। एग्जांपल है il habille son enfant। अगर यहाँ पे एच हो रहा है, एच म्यू है, यानी कि एच साइलेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो दे एस लग गया, इसका नेगेटिव। déshabillé मतलब कपड़े उतारने, आबिये मतलब पहनने, ठीक है। mettre des vêtements, déshabiller, enlever les vêtements। Screenshot. अच्छा सॉरी, मतलब आई डिडंट डिस्कनेक्ट, पता नहीं क्यों, आपने खुद से ही हो गया। चलो एनीवे, सो आबिये होता है, राइट, mettre des vêtements, कपड़े पहनने, एल अभी son enfant, और उसके आगे दे एस लग गया, तो ये नेगेटिव बन गया, राइट। अब एस क्यों लगा? क्योंकि ये है अपना एच साइलेंट, तो इसलिए एस लग गया। déshabillé, enlever les vêtements, elle déshabille la bébé pour la bain, बां होता है बात, तो उसने बच्चे के कपड़े उतारे शावर के लिए और नहाने, उसको नहलाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है पहने। पहने होता है
कॉम्ब कॉम्ब करना हम पढ़ा ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता था मतलब जब हम वोकेबलरी कर रहे थे उसकी, अपना हाउस होल्ड आइटम्स की, तो हमने पढ़ा था ना वो कॉम्ब टाइप एक चीज होती है, कंघा कह लो, वो पहनने कहते हैं। तो दे पहने, ये वर्ब की हम बात कर रहे हैं, वर्ब की, राइट। हम ये बात कर रहे हैं वर्ब्स की, वर्ब्स कैसे होते हैं। तो वर्ब्स कैसे, उनका मीनिंग चेंज होता है जब उसके आगे द लग जाता है। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा चीजें मतलब पढ़ने में या देखने में। सो प्लासे, सो मैथ कैल्क शोज आ उन सर्टेन प्लास, जब जैसे मैं कोई चीज अपनी उसके ठिकाने पे रख रहा हूँ उसको बोलते हैं प्लासे, वर्ब। और दे प्लासे मतलब जब मैं उसकी जगह बदल रहा हूँ, changer la place, changer de place. Elle déplace la chaise vers la fenêtre. ठीक है। तो उसके बाद आ गया आपका रांचे, फिर या दे रांचे। रांचे होता है सब कुछ अपने ठिकाने पे रखना, रांचे। मैथ अनौंत्र, ये देखो ये उसके पहले है दे रांचे और दूसरी है रांचे, वर्ब रांचे, ये वाला avant après. Il range sa chambre, दे रांचे। अब उसके आगे अताशे, देताशे। अताशे होता है मतलब किसी चीज को बांधना। एग्जाम्पल दूं मैं, je vais attacher mes chevaux, उसको क्या बोलते हैं, लेसिस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में? ओके, उसको बोलते हैं लासे। je vais attacher mes lacets। अगर मैंने कहा ना मैं अपने शूज की लेसिस बांध रहा हूँ, अताशे, तो मैं कहूंगा je vais attacher mes lacets। अगर मैंने कहना वो मैं खोल रहा हूँ, तो मैं कहूंगा je vais détacher mes lacets। ठीक है। और एक दे लग गया आगे उसके, तो उससे थोड़ा सा उसका बदल गया, मतलब खोलना हो गया, बांधना हो गया ताशे, और उसको दे कर दिया तो उसको खोल दिया। सेम ब्रांचे, दे ब्रांचे। अगर मैं सॉकेट को प्लग इन कर रहा हूँ, जब ये ब्रांचे, और मैं उसको निकाल रहा हूँ, तो होगा दे ब्रांचे। सेम वीजे, दे वीजे। तो वीजे होता है किसी चीज को कसना, जैसे पेच कसे कहते हैं ना, वीजे तोड़ना। ये होगा आपका वीजे या दे वीजे। ठीक है जी। स्क्रू इन स्क्रू अनस्क्रू। अनस्क्रू, या स्क्रू अनस्क्रू, परफेक्ट। वीजे होता है। और ये इसका करते किसके साथ है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं तुर्नविस। ये ड्रिलर मशीन है, ये और चीज है, लेकिन नॉर्मली हम करते हैं इसको तुर्नविस, तुर्नाविस। सो ये एक आपका इंस्ट्रूमेंट कह लो, ऊती कह लो, है ना, जिसे हम पेचकस अपनी भाषा में कहते हैं, पेचकस, तो फ्रेंच में कहते हैं तुर्नाविस, जिससे हम चीजें नट को खोलते हैं और बंद करते हैं, वीसे या दी वीसे। ठीक है। सो बहुत लंबी लिस्ट है ये, ठीक है, बाकी जितना होता है हम कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी हैं, जैसे आ
और आ वाले है, उसका क्या मतलब होता है, फिर इसके आगे हो र आर ई, उसका क्या सेंटेंस चेंज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगी उसका मतलब पता करने के लिए, इसका मतलब क्या हो सकता है। क्योंकि फॉर श्योर आपको सब कुछ नहीं पता नहीं होगा जब आप पढ़ोगे, लेकिन इफ यू ट्राई टू ब्रेक दैट तो आपको समझ आएगा मोटा मोटा इसलिए क्या क्या बात चल रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो फॉर ए बिगिनर फॉर स्टार्ट विद दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया जी प्ली। प्ली करना होता है फोल्ड, इंग्लिश इट्स फोल्ड। प्ली हम कर सकते हैं, प्ली क्या फोल्ड करते हैं। ये प्ली प्ली समझ नहीं आया क्वेश्चन फिर। प्ली जो होता है, हम्म, अगर हम बेडशीट को क्या कहते हैं, मैं भूल गया, बेडशीट को क्या कहते बेडशीट हैं। को जब प्लिए मतलब करना, किसी को फोल्ड करना, राइट, हम प्लिए उसको बोलते हैं फोल्ड को। जब वेतमा भी कह सकते हैं प्लिए, हम्म, प्लिए ले वेतमा। ड्राप नो द नो या क्लोज, काइंड ऑफ क्लोज। तो जैसे मैं अगर कहूँ मैं है ना, प्लिए ले वेतमा, हम्म, तो ये मतलब कि मैं अपने कपड़ों को ना तय कर रहा हूँ। तो दे प्लिए क्या होता है, उसका उल्ट, मतलब कि मैं सारे खराब कर रहा हूँ, बिखेर रहा हूँ कपड़े को। तो ये मतलब समझ के मतलब कि और उसका मतलब क्या क्यों बता रहा हूँ सब कुछ मैं। तो आपको मतलब पता भी नहीं है ना इसका इसका, तो आपको थोड़ा पता हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा यार, मतलब दे का मतलब कुछ नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं है मतलब इसके आगे दे लगा ना। तो वो उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आप तुक्का भी मारोगे ना तो शायद आपका चांसेस सही होने की थोड़ा ज्यादा अप है। ठीक। अब क्या है अक्रॉशे, डिक्रॉशे। अक्रॉशे होता है अताशे, अब अलेदुन स्पॉग, अक्रॉशे। जैसे मैंने कुछ दीवार पे है ना लगाना है, तो मैं बोलूंगा अक्रॉशे। अब डिक्रॉशे होता है क्रोशे उसके बाद उतारना, राइट। अगर आई हैव समथिंग हैंग ऑलरेडी ऑन द वॉल, आई वांट टू रिमूव दैट, तो उसके लिए है डिक्रॉशे। लेवे कैल्शोज सकिएते क्रॉशे, अक्रॉशे डिक्रॉशे, सो बेस सेम ही है। पर ये थोड़े स्पेशल होते हैं ना थोड़ा सा, जैसे आपने आप बोलोगे यार ये तो पहले ए सी सी है, अब तो सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सारा रिप्लेस कर दिया ये ए सी पहला, अक्रॉशे डिक्रॉशे। तो कुछ चीजें यार मतलब आपको पता एक्सेप्शंस बहुत होती है फ्रेंच में, तो विद प्रैक्टिस आपको आएंगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है कि बताना आपको यार, मतलब सेंटेंस का जो वर्ड है ऐसे बना है, इसका मतलब ये हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, इसके आगे द लगा हुआ है। और डी एस लगाते हैं जब हम व्हेन इट स्टार्ट विद वॉवल और एच साइलेंट। सो बाकी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होंगे आपके सामने। प्लीए दे प्लीए, ये देखो ये फॉलो कर रहा है रूल को, दे प्लीए, फोल्ड करना और अनफोल्ड करना। सो मोंते होता है चढ़ना, हमने पढ़ा ना जब मोंते लेस्काल्गी, हमने ये पढ़ा हुआ है ना जब हम कर रहे थे जवे prepositions, जवे मोंते पार लेस्काल्गी, हमने पढ़ा था ना अभी मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ, हाँ राइट। जी तो हमने पढ़ा था ये पार होता है preposition, राइट। सो तो ये वर्ब दे मोंते होता है उतरना, चढ़ना उतरना, दे मोंते, सो सेम।
monte dei monte, boucle dei boucle। सो boucle होता है ferme avec un boucle, तो किसी चीज को हमने मतलब उसको बंद कर दिया। जस्ट वन सेकेंड। ये हमने बालों के लिए ना मतलब बहुत यूज होता है, से शेवों सो boucle, से शेवों सो boucle। J'avais 10 boucles mes chevaux। Que j'avais 10 boucles mes chevaux। सो ये इन्होंने सेंटेंस बनाया, il boucle sa ceinture de sécurité, उसने मतलब अपनी सीट बेल्ट लगा ली। il boucle मतलब उसने अपनी सीट बेल्ट लगा ली। सो दी बुकले होता है ओवरियर ला बुकल, सो ही ओपन ही सीट बेल्ट। il débucle ses sandales, ses bottines par exemple, ses bottes, il déboucle sa ceinture। ठीक। अब सेम होता है verrouiller, déverrouiller। verrouiller होता है fermer à la clé ou avec un verrou, je verrouille la porte, मैंने बंद कर दिया। और déverrouiller होता है खोलना, ouvrir। इसको कह सकते हो आप to close, to open। इसके आगे दे लग गया। चार्जे, डिचार्जे, चार्ज होता है टू चार्ज और डिचार्ज होता है टू डिस्चार्ज। ओके, un camion, une batterie, on charge des valises dans la voiture, enlever la charge, le docteur décharge la bateau। फिर अगर आपका couvrir, découvrir, ढकना किसी चीज को तो बोलते couvrir, to cover, to cover। और इस चीज को खोलना, to open, होता है découvrir। enlever, qu'il couvre। फिर आता है coller, décoller। कोले होता है चिपकाना, टू पेस्ट। और दिगोले होता है सेपारे, टू सेपरेट। एग्जाम्पल इसकी ये है, अगर आपको स्टैंप लगानी है किसी चीज के ऊपर एनवेलप पे, तो ऐसे जब कोले आ टिम्बर सुर l'envelope। ओके, अगर आपको उतारनी है तो आप बोलोगे जवे दी कोली, दी कोली। सेम आ गया आपका आगे ब्रांशे, दे ब्रांशे। ब्रांशे होता है लगाना, दे ब्रांशे होता है उतारना। ये सेम मतलब ऐसे पढ़ा ना आपने आगे।
ब्रांचे दे ब्रांचे, ये सेम रिपीट हो गया। सैरे दे सैरे, सैरे होता है किसी को टाइट करना किसी को, दे सैरे होता है लूज करना। Il sert les écrous avec une clé. ओके, ये होते हैं नट्स आपके आगे। So he's tightening the nuts with a key. With a key. So he's tightening. He tightens the nuts with the key. So don't stress yourself too much. If it's too much for you, you can just learn the basic words. जैसे monte, de monte, boucle, de boucle. ओके, शार्जे दे शार्जे, कुवरीर दे कुवरीर, कोले दे कोले, ये हमारे यूज होते हैं राइट। ब्रांशे दे ब्रांशे, ये भी सैरे दे सैरे हमारे यूज होते हैं जी। बट फर्स्ट आपको थोड़ा सा लगेगा यार क्या है ये इतना कुछ, बट आपको ये काम बड़े आएंगे बाद में। सो ऐसे ही चलते हैं आगे। चलें, ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? क्या कुछ गेम वेम खेल लें, काउट वगैरह खेल लें, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं ज्यादा तो इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज नहीं है। क्योंकि आपको बाद में ये हेल्प होगी, मतलब जब आप सेंटेंसेस खुद से बनाओगे ना, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये तो अगर आप कहते हो तो हम प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, कुछ और कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि आज है ना, भी आई डोंट वांट टू, ये भी आपको सारा पढ़ना है आज, ये काफी हो गए वर्ड है ना। और दूसरा हमने जो आगे करा है उसकी वगैरह आप अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं चाहूंगा यार भी आप प्लीज मुझे अपनी छोटी सी वीडियो बना के भेजो आप अपनी प्रेजेंटेशन करते हुए। तो जैसे हमने ये करा अभी, तो आई कैन परहैप्स लुक एट इट और आई कैन करेक्ट यू। तो है ना, आपका रीजन क्या है, आप फ्रेंच क्यों पढ़ रहे हो? तो आप लिख सकते हो कि मुझे पेपर चाहिए, आई एम लर्निंग फ्रेंच फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। कुछ भी आप बता सकते हो, मुझे प्यार है इससे, लैंग्वेज से, बचपन से मैं चाह रहा था। तो सब कुछ मतलब आप बता सकते हो। आपका ये होमवर्क है आज, आपको रिकॉर्डिंग करनी है 2-3 मिनट की। उसके लिए आई डोंट नो हाउ मेनी टेक्स यू टेक है, 40-50, इट्स अप टू यू। बट ये है कि आपको ये आनी चाहिए। अब तक बहुत टाइम हो गया हमें मतलब करते हुए फ्रेंच, 2-3 महीने हो गए। तो ये दिस इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू राइट। तो आपको ये बनानी है अपनी, यू कैन प्ले विद इट। बस आप स्ट्रक्चर ये रखना याद, स्ट्रक्चर आपका यही होगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल आपकी मर्जी के होंगे। और ये अपने सिद्धू मूसे वाला जो मर्जी कहता ना, ये आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी प्ले करो इसको। सो स्टोर में तो फ्रेंच है ना। हाफ में तो फ्रेंच है, उसके नाम। ये आपने अपनी बात करनी है यार। तो जो जगह का नाम और बंदों का नाम सब कुछ अपने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखना आपको, मतलब आपका रीजन आपको, आर यू कैपेबल इनफ आफ्टर 3 आफ्टर मे बी 10 weeks टू मेक बेसिक सेंटेंसेस इन फ्रेंच। क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली है अभी, तो जो हमने पढ़ा अभी उसको थोड़ा सा बाहर लेके आए, और ऐसे हम लिटिल स्टेप्स तो लें अपने फ्रेंच लर्निंग में। तो हम राइट, तो बस यही है। सो इससे हम फिर आगे जाएंगे। तो आप देखोगे विच एरिया नीड मोर इम्प्रूवमेंट। तो छोटी सी एक्टिविटी हम ऐसे ऐसे करके हम आगे जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है आप, सो टेक 10 शॉट्स 20 शॉट्स, जैसे ठीक लगे आपको। तो हम उसको इकट्ठे देखेंगे यहाँ पे, एंड आई विल ट्राई टू करेक्ट यू। एंड उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और आज के लिए अगर आपको अभी करनी है तो यू कैन स्टार्ट, आई विल ट्राई टू करेक्ट यू। लिखना है तो लिख सकते हैं कुछ, जैसे आपको ठीक लगे। कुछ ग्रामर करनी है ग्रामर कर लेते हैं, काउट खेल लेते हैं। काउंट कर लेते हैं चलो। काउट कर लें, हाँ 15 मिनट रहते हैं। 15 मिनट काउट कर लें। चलो ठीक है।
देव सेंड मी वेरिफिकेशन लिंक। आगे तो नहीं था अभी भी, पता नहीं अब क्यों हो गया। Okay, so yeah, oui.
जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है ना लास्ट वी स्टार्ट दैट। गुड लक जी। Très bien. So this is in Jupe. मानतो थोड़ी है, कोट थोड़ी है यार ये। पांतालो भी नहीं है, रोब भी नहीं है। रोब होती है फुल ड्रेस, मानतो होता है कोट, और पांतालो होती है पैंट, और जूप होती है मिनी स्कर्ट। Très bien. un कॉस्ट्यूम होता है या फिर un complet, राइट। हम इसको un कॉस्ट्यूम कह सकते हैं कोट पैंट को, या फिर un complet। कॉम्प्ले भी कोट और पैंट आ गया। शपो की होगा, शपो शापो होती है हैट, हैट। हाँ, हैट राइट। रोब होती है पता आपको, राइट, जो पूरी ड्रेस ना लेडीज की। स्मोकिंग तो है ही नहीं है कुछ। चलो anyway, très bien, très bien, très bien। ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, टेलर पता नहीं क्या होता है। टाइलर, टायर, c'est quel vêtement? अनुराग, ये नया था। We have not done this, no problem। हम्म। तो अगर आप पता आपको उन स्वीट क्या होती है, स्वीट स्वेट क्या होती है? लॉल।
Okay, so last one was a coat, manto. ठीक है, इम्परमिएबल तो नहीं था, राइट? मायो दे बांग होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, राइट? सो इम्परमिएबल होता है रेनकोट, सो मांतो ये आएगा, राइट? कोट। कोट। Yeah. देख नहीं रहा अभी। अच्छा, सॉरी। देशापो। ओके, देशोसेप क्या होता है? शॉसर होते हैं सॉक्स। शापो पहले आया था ना, मैं फर्स्ट में आया था शापो, तो प्लूरल है दे शापो। एंड देख खवे टाई होती है। शॉसर होते हैं बूट और शॉसेट होते हैं सॉक्स। तीसरे वाला, सॉरी, जिसमें ये लगा ना येलो, तो ये है सॉक्स। और यहाँ बात हो रही है हैट्स की, ठीक है? सो ये है जी आपका आंसर। ओके, हाँ श्योर, très bien। तो ये आई थिंक दे वर आस्किंग समथिंग दैट वाज बीनीथ द कोट, मानतो के नीचे, तो थोड़ी फोटो गलत थी मेरे हिसाब से ये, राइट? शुड हैव बीन मोर क्लियर। très bien, इंग्लिश का वर्ड ही है तो ना। दे शॉसेट, शापो होते हैं हैट्स, देबा होते हैं देबा। व्हाट इज देबा? आपकी गया मैं तो देबा। ओके, दे आर टाइट सॉक्स, टाइट, स्किन टाइट। शॉसर होते हैं अपने आपके बूट, और शॉसेट होते हैं सॉक्स। तो गुड आंसर वाज शॉसेट, सॉक्स। सो दिस इज मायो देबे, देबा। ओके, बिकनी भी कह सकते हैं, but since we have a swimming pool behind a lake or something, so it was more suitable.
Blossom. ओके, ब्लॉसम। ओके, रोप तो नहीं है ये, जूप भी नहीं है, कॉस्ट्यूम भी नहीं, ब्लॉसम। या très bien, प्रोनाउंस मतलब सब कुछ इकट्ठा ही आ गया, राइट? गॉट इट राइट। Okay, so please don't get confused between chaussette and chausseur. Chaussette होती है सॉक, सॉक्स, और दे chausseur होते हैं शूज, ठीक है? So please take a note of that. तो chaussette and chausseur. That was really good. So I'm happy that you revised the concept really well, the Vetma, and the video was helpful. Congratulations to you too. ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ let me stop the recording first. Manage recording.